हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज फिर से हम 10 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये क्विज नंबर होगा आपका 12। इसमें आज हम फिर से 10 क्वेश्चंस जो हैं आरटीएम के रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज प्रीलिम्स 2021 के लिए कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिए एंड देखते रहिए गाइस, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो क्वेश्चन नंबर है 1111 इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 142 कि आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 142 के बारे में आर्टिकल 142 के बारे में पूछा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है आर्टिकल 142 के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन इज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दिया है। सेकंड इज मेजर्स टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मेजर्स हैं उनको कंप्लीट यानी कि जस्टिस मिलने के लिए है। थर्ड वन इज एपलेट जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स। एंड फोर्थ वन यानी कि डी ऑप्शन इज कन्फर्मेंट इन द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का कन्फर्मेंस है वो क्या है, रिट जारी करने का पावर है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द आर्टिकल 142? तो आई एम एक्सप्लेनिंग लिटिल बिट आर्टिकल 142. It provides a unique power to the Supreme Court to do complete justice between the parties, as that where at times law or statute may not provide a remedy, the court can extend itself to put a quietus to a dispute in a manner which would befit the facts of the case. So that is answer is guys B, यानी कि measure taken by the Supreme Court to do complete justice. तो answer is B guys. B is the right answer is B. So measure taken by the Supreme Court to do complete justice is a part of Article 142. That is the right answer. Next question is, what is Open Sky Treaty was in news recently is related to which of the following? These are four options about the Open Sky Treaty. First one is reduction and limitations of strategic offensive arms. Second is limit the export of nuclear equipment. Third is freedoms of air. Fourth one is program of unarmed aerial surveillance flights over the entire territory of its participants, यानी कि जो पार्टिसिपेंट हैं यानी कि जो इसमें पार्टिसिपेट हैं इसके जो ओपन स्काई ट्रेटी से रिलेटेड हैं उनकी सर्विलांस फ्लाइट जो होती हैं उसके एंटायर टेरिटरी ओवर द एंटायर टेरिटरी, जस्ट लाइक अनआर्म्ड एरियल सर्विलांस प्लस इज जस्ट टाइप ए प्रोग्राम. तो दैट ओपन स्काई ट्रीटी आई जस्ट लिटिल बिट एक्सप्लेन अबाउट इट. इट इज ए अकॉर्ड बिटवीन ओवर 30 कंट्रीज that allow participants to fly unarmed reconnaissance flight over any part of their fellow members states, and it proposed in 1955 by former US president and the Russian president during the Cold War. Eventually it has signed the 1992 between NATO members and former Warsaw Pact countries following the demise of the Soviet Union, and it is effect in 2002 and had a signatories including key players US and Russia along with one non-ratifying members like Kyrgyzstan. एम ऑफ द OST की बात करें यानी ओपन स्काई ट्रीटी का जो एम है दैट इज बी बिल्ड कॉन्फिडेंस एमंग मेंबर्स थ्रू म्यूचुअल ओपननेस thus reducing the chances of accidental war. That is about open sky treaty, and this is like a program of unarmed aerial surveillance flights over the entire territory of its participant. That is answer is D. Next question guys, 113. Who is Uyghurs? It's talking about Uyghurs, यानी कि who are Uyghurs? Uyghurs कौन है? तो it is first option is an Iranic ethnic group native to a mountainous region of Western Asia. Second is an ethnic group largely comprising Muslims who predominantly live in the western Myanmar province of Rakhine. Third is a Muslim minority community concentrated in China's northwestern Xinjiang province. And fourth one यानी कि डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव.
तो गाइस टॉकिंग अबाउट Uyghur, I'm just taking about little bit explanation in Uyghur. A Muslim minority is a community concentrated in China's northwestern, यानी कि चाइना का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है शीजियांग प्रोविंस, वहाँ पे क्या है कंसनट्रेटेड है, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के इनहेबिटेड हैं. इट क्लेम्स क्लोजर एथनिक टाई टू टर्की एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज देन टू चाइना. तो दैट इज ए मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसनट्रेटेड इन चाइना. दैट इज द right answer about the Uyghurs. Next question guys, 114 questions. Consider the following statement regarding group of 7 यानी कि G7 countries. तो first one is the group of 7 is an international intergovernmental economic organizations consisting of the 7 largest IMF described advanced economies in the world. Second is India was invited as a नॉन मेंबर कंट्री फॉर द 2021 यानी कि 2021 G7 समिट, यानी कि इंडिया इन्वाइटेड था एज ए नॉन मेंबर कंट्रीज. थर्ड वन इज कनाडा, फ्रांस, जापान एंड चाइना आर द मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज. विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि ऑल थ्री में से विच स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो गाइस देखो G7 मेंबर्स की बात करें तो G7 मेंबर ओरिजिनली G8 मेंबर थे. इट वाज इन 1975. But after after Russia drop out this group about the Russian President Vladimir Putin's condemnable act of moving Russian troops into eastern Ukraine and conquering Crimea in 2014. After 2014, Russia has left that group. So that is a G7 group. And ओरिजिनली अगर बात की जाए तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम हैज इनवाइटेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया टू अटेंड द G7 समिट दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जून एज ए गेस्ट कंट्रीज. तो दिस समिट वाज हेल्ड इन सऊदी अरबिया एंड G7 कंट्रीज G7 कंट्रीज आर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. There are 7 countries in G7. Next question is, consider the following statement regarding 5G mobile network. The first one is 5G technology is meant to deliver higher multiple Gbps यानी कि गीगाबाइट पर सेकेंड पीक डेटा स्पीड, यानी कि ये Gbps दोगी यानी कि पीक डेटा स्पीड देगी, अल्ट्रा हाई लेटेंसीज, मोर देन reliability and massive network capacity. Second option is 5G wireless devices will connect to the internet and telephone network by radio waves through a local antenna. So which statement are correct about that? So can just explain a little bit. 5G wireless technology is meant to deliver higher multiple Gbps peak data speeds and ultra low latencies, more reliability, massive network capacity, increased availability and a more uniform user experience to more users, higher performance and improve efficiencies, empower new user experience. That is about 5G technology. So first option is guys wrong. So second generation की बात करें, it's all 5G wireless devices in a cell for are connected to the internet and telephone network because of through a local antenna by radio waves. Second is right option. Answer is B. Second is only. That is about 5G technologies. Next question is, with reference to communication technology, what are the difference between LTE long term evolution and VoLTE यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. शायद ये पहले भी कोई गाइस हमने क्वेश्चन उनके बारे में पूछा है. विच इज स्टेटमेंट करेक्ट? तो फर्स्ट वन इज LTE यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड VoLTE यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G. सेकेंड इज LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजीज एंड VoLTE इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजीज. ये पूछा कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दैट. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो गाइस आई एम लिटिल बिट टेकिंग अबाउट बोथ आर स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज नीदर वन और नॉट टू. देखो फर्स्ट वन इज कह रहा है वोल्ट LTE के बारे में. तो LTE जो है इज ए network 4G network like volt is voice calls over a 4G LTE network.
rather than 2G or 3G connections. Volt can transmit data to, or Volt has up to 3 times more voice and data capacity than 3G UMTS and up to 6 times more than 2G GSM. So both first and are wrong, neither first nor two. Next question guys, consider the following statement about. First one is, he acted as de facto commander in chief of the Indian Army during the political integration of India and the Indo-Pakistan War of 1947. Second is, he was appointed as the 49th president of Indian National Congress. Third one is, he was associated with the Operation Polo. He was posthumously conferred the Bharat Ratna. The person associated with the above statement is, यानी कि ये जो पर्सन है, इतनी सारी क्वालिटीज हैं, वो किसके बारे में सही है गाइस? तो यू नो गाइस, that is the only one person, that is Vallabhbhai Patel, is about these things, because Operation Polo was a name used to refer to the Hyderabad police actions, which was essentially a military operations under which the Indian armed forces are related to that. क्या बढ़िया, यानी कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली flagged off 8 trains connecting Kevadia and Gujarat, where the Statue of Unity is located to Sardar Vallabhbhai Patel. Next question guys, 118 question is, which the reference to education institution during rule in India consider the following pairs. यानी कि इसमें आपको पेयर्स मैच करने हैं, which are institution and founder is correct. तो फर्स्ट वन इज संस्कृत कॉलेज, उसके जो फाउंडर थे विलियम जोनास एट बनारस. सेकंड कलकत्ता मद्रास, इसके वॉरेन हेस्टिंग्स. फोर्ट विलियम आर्थर, इसके वेलेजली कॉलेज. कह रहा है विच पेयर्स आर गिवन करेक्ट. देखो सेकंड इज ओनली करेक्ट बिकॉज कलकत्ता मदरसा इज रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग्स एंड फर्स्ट इज रॉन्ग एंड थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग. तो आंसर इज बी, यानी कि सेकंड इज ओनली. आई एम एक्सप्लेनिंग लिटिल बिट अबाउट दैट कि वॉरेन हेस्टिंग्स हिमसेल्फ एन इंटेलेक्चुअल सेटअप द कलकत्ता मदरसा इन 1781, यानी कि कलकत्ता मदरसा को 1781 में उन्होंने सेटअप किया था. एंड 1791 द एफर्ट ऑफ जोनाथन डंकन द ब्रिटिश रेजिडेंट एट बनारस इज द संस्कृत कॉलेज वाज ओपन एट बनारस. तो जोनाथन डंकन आज रिलेटेड टू संस्कृत कॉलेज बनारस. थर्ड वन, लॉर्ड रिचर्ड कोली वेलेजली, नॉट आर्थर वेलेजली. इट्स द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड रिचर्ड कोली वेलेजली एंड आर्थर वेलेजली. टुक द फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रेनिंग ऑफ civil servants when he founded the Fort William College in Calcutta in November 1800. That is the right answer. That is the all explained all these question. Next question is 119 regarding Wood's dispatch. यानी कि Wood's dispatch क्या था? The following statement are true. First, in grant and aid system was introduced about Wood dispatch. यानी कि grant aid system को introduce किया गया था Wood dispatch में. Second is एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वॉज रिकमेंडेड, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट था उसको रिकमेंड किया गया था वो डिस्पैच में. थर्ड इज इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड. यानी कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि कह रहा है कि थर्ड ऑप्शन में गाइस इलेक्शन को इंग्लिश को मीडियम बनाएगा कि आप ऑल लेवल्स एजुकेशन में क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम को रिकमेंड करेंगे. तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो गाइस फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट एंड थर्ड इज रॉन्ग, बिकॉज ऑल मीडियम पे इंग्लिश को ऐसा नहीं बोला गया था कि इंग्लिश को जो वुड डिस्पैच था उसमें लागू किया जाएगा. तो फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट आंसर. आई लिटिल बिट एक्सप्लेन अबाउट दैट. वुड डिस्पैच इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा, उसको मैग्ना कार्टा बोलते थे ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. उसका जो मैग्ना कार्टा जो था वो डिस्पैच था, उसके कुछ एम्स थे. एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज टू बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस. उन्होंने कहा कि एवरी प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप करेंगे. यूनिवर्सिटीज़ ऑन मॉडल ऑफ द लंडन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि लंडन यूनिवर्सिटी के बेस पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी लाइक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में. और वन गवर्नमेंट स्कूल होगा टू एवरी डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट, यानी कि खोलेंगे कम से कम एक ज़िले में. और एफिलेटेड होंगे ये प्राइवेट स्कूल किससे, ग्रांट इन एड, यानी गवर्नमेंट की ग्रांट इन एड पे. और इंडियन नेटिव होंगे शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग, वो मदर टंग में भी क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेन हो सकते हैं. इन अकॉर्डेंस with the Wood dispatch education department were established in every province and universities were open at Calcutta. वो कलकत्ता में ओपन होंगी, बॉम्बे में होंगी एंड मद्रास में होंगी इन 1857 on the model of the London universities. Later more universities
वर ओपन इन पंजाब इन 1882 एंड एट इलाहाबाद इन 1887। का ये क्वेश्चन वैसे यूपीएससी 2018 में भी पूछा गया है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। ऑल मीडियम सॉरी इंग्लिश इज नॉट मीडियम ऑल लेवल्स, उन्होंने कहा था कि आप अपनी मदर टंग में भी क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग आप एजुकेशन ले सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 182 आर रिलेटेड टू। लेकिन इंटरनेशनल जो लॉ है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कन्वेंशन 138 और 182 किससे रिलेटेड है? तो गाइस दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। तो 138 एंड 182 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर बिकॉज it has ratified two fundamental convention of the international labor organizations, that is the regarding of child labor. This is ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। सो प्लीज़ थैंक यू गाइस एंड देखते रहिए। आज ये 10 क्वेश्चन फिर से हमने कंप्लीट किए हैं और बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।